everyone. Hope you all are doing good, keeping safe and healthy. तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गई suddenly. तो as you know, if you are following my channel, that Prishu was very young. I mean, she was around like 3-4 months जब मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था because टाइम नहीं मिलता है जब बच्चा घर में होता है, तो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया. So nevertheless, अभी प्रीशु 1 साल की हो गई है and अभी वो थोड़ा खेलती है खुद से. I do get time because now I'm a pro. Okay, so jokes apart. So in this vlog, I will share my experience of traveling alone with Prishu as well as some do's and don'ts. And I think it is going to help you because जब मैं travel plan कर रही थी, then I also watched some videos and कुछ blogs पढ़े थे मैंने, and it actually helped me. So कुछ points जो मुझे लगा I couldn't find there, मैं यहाँ पे share करूँगी along with all my experiences. So hope it is going to help you. So let's start the video. So first thing, if you're traveling, try to avoid longer flights. But in my case, मुझे US से इंडिया जाना था, and my flight duration was around 25-26 hours. कोशिश करिए जितनी short flight हो, और अगर नहीं avoid कर सकते हैं, then make sure that you book a direct flight instead of connecting flights because उसमें layovers होंगे, and then there would be long, waiting hours. I think so a lot of you might be thinking कि break करके better होगा, baby will get rest. ऐसा नहीं होता है. If you have traveled, layovers में हम खुद इतना थक जाते हैं. Imagine sitting and waiting for the flight. उसमें आपके पास एक बच्चा है. अगर if it's a toddler, walk कर सकता है, crawl कर सकता है. It's a big headache. So better कि direct flight हो तो बीच में आपको कहीं रुकना ना पड़े. That is going to be easy. आप direct flight. Okay, let's go to the second point. So when you are booking the tickets, make sure that you book your ticket with Bassinet. अब आप सोचोगे ये क्या है, because I also didn't know about this. तो Bassinet वाली सीट जो होती है वो थोड़ी spacious होती है. It's the front seat और वहाँ पे बेबी के लिए एक क्रिब छोटा सा Bassinet लगा होता है where the baby can sleep. तो वहाँ पे leg space भी ज़्यादा होता है and then you have the crib, like the small bassinet with you. तो आप बच्चा जब भी सो रहा है तो आप उसको डाल सकते हैं and then आप free होकर you also can relax. तो उसके लिए I think थोड़ा you have to check और थोड़ा पहले से booking कर लेंगे तो वो better होगा. So for the mother and baby it's free, but like if you're traveling with your husband or parents or whosoever, then if the person wants to sit next to you, then I think he has to pay some extra amount. So this is the second important point. Don't book random seats with your baby. Okay, and my third point is carry a stroller or baby carrier with you. तो stroller आप फ्लाइट में एंटर करने के पहले you can submit your stroller. लैंड करने के टाइम में आपको मिल जाएगा. We had a connecting flight from Delhi to Kolkata when we were coming from Chicago. तो वहाँ पर दिल्ली में we had a layover of around 6 hours. और वहाँ पे एयरपोर्ट बहुत लंबे होते हैं, राइट? अगर आपको बच्चे को गोद में लेके जाना हो, इमेजिन यू हैव टू वॉक सो मच, और आप इतनी लंबी जर्नी से, सो आवर शिकागो टू दिल्ली फ्लाइट वाज ऑलमोस्ट 16 आवर्स. तो कितना वी वर ऑलरेडी टायर्ड है उसके बाद. तो स्ट्रोलर में लेके उसको घूमना वाज वेरी इजी. सो आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन वी टुक. And also, if you're not willing to carry a big stroller, then at least carry a baby carrier. That is very helpful. And my fourth and most important point, which is carry less luggage. But अगर बहुत important है तो avoid नहीं कर सकते, then it's fine. Check-in luggage में आप सब dump कर दीजिए. Cabin luggage में carry as less as you can because you have to take care of your baby full time उस flight में. Only carry the stuff which is important for your baby. मतलब बच्चे के लिए जो भी diaper bag में वो सब कुछ रखिए, but कुछ एक्स्ट्रा मत कैरी करिए. आई वुड सजेस्ट, बिकॉज मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ. तो जब हम जा रहे थे तो वाइल गोइंग माय हस्बैंड वाज विद मी, तो एक ट्रॉली भी एक्स्ट्रा था मेरे पास अलॉन्ग विद द डायपर बैग. तो उन्होंने ओके सो जाते टाइम ही वाज देयर. मम्मा रिटर्निंग में आई वॉज अलोन. मैंने थोड़ा अच्छा किया था दैट आई वॉज जस्ट कैरिंग वन डायपर बैग. मैंने ट्रैवलिंग के टाइम में एक चीज और नोटिस की थी दैट देयर वर ममाज जो इन्फेंट के साथ थी या टॉडलर के साथ थी. सो दे ऑप्टेड फॉर अ व्हील चेयर, जो कि आप बुकिंग के टाइम में ही कर सकते हैं एयरलाइन, एंड एयरलाइंस प्रोवाइड यू द व्हील चेयर.
तो मैंने देखा कि वो बच्चे को उसमें लेके बैठ गए थे, और अगर 1-2 लगेज एक्स्ट्रा भी है तो व्हील चेयर वाला गाय विल कैरी योर लगेज। तो आई थॉट कि ठीक है, पहले मैंने भी, हाँ, तो रिटर्निंग में मैंने वाज अलोन, तो मैंने व्हील चेयर भी ऑप्ट किया था। सो क्या हुआ मेरे साथ, जब मैं इंडिया में मैंने कोलकाता से फ्लाइट ली, तो आई गॉट द व्हील चेयर एंड एवरीथिंग वाज फाइन। वहां मैं दिल्ली चली गई व्हील चेयर में, एंड प्रीशु वाज विद मी, एक बैग था, सब पीसफुली हो गया। बट व्हेन आई लैंडेड इन शिकागो, तो वहां पे लैंड करने के बाद मुझे पता चला दैट यूएस हैज सच अ स्ट्रिक्ट रूल, सो दे डोंट अलाउ व्हील चेयर विद इन्फेंट्स। तो वो ऐसा क्यों? क्योंकि कभी ऐसा हुआ था कि कोई इन्फेंट गोद में बैठा था अपनी मम्मी के, एंड वो बच्चा गिर गया, चोट लगे, बिकॉज वहां बेल्ट वेल्ट तो होता नहीं, बच्चा आपकी गोद में ही होता है। सो दैट्स व्हेन यू नो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो we didn't get the wheelchair, and there were so many mummies like me, तो सबके पास बच्चे थे, but there were many other moms या बाकी पेरेंट्स भी थे जिनके पास बहुत लगेज था, so it was difficult। तो that's why I'm suggesting you जितना कम सामान हो सके कैरी करिए। Yeah, so now let's get to the last point, what you should carry when you're traveling with a baby, like infant or toddler. First thing, diaper and changing pad. Carry extra diapers, wipes of course, formula or your breast milk. अगर बच्चा directly पीता है then it's very good, otherwise bump करके अगर आप पिलाते हो then carry some extra। हाँ, फॉर्मूला के लिए I would suggest पूरा डब्बा मत कैरी करिए। ट्रैवलिंग के लिए आप अलग से जितना वो पीता है उतने घंटे, I mean you can calculate कि जितने आवर की फ्लाइट है बच्चा कितना पिएगा, उस हिसाब से टेक अ स्मॉल बॉक्स और मे बी द जिप लॉक। देन कैरी वाटर, अगर आपका बच्चा I mean 6 months के ऊपर है, देन सम स्नैक्स इफ योर बेबी इज ईटिंग, बिकॉज बीच में बच्चा मंच करता रहेगा तो वो बिजी रहेगा, दे वोंट क्राई सो मच। देन ऑफ कोर्स बेबी फूड, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बना सकते हो तो यू कैन ब्रिंग सम होममेड फूड, बिकॉज फ्लाइट में बच्चों के लिए I mean सिक्योरिटी चेक इन में दे आर वेरी कंसिडरेट, तो आपका बनाया हुआ खाना वो अलाउ करेंगे, इवन आप खरीद के भी, जो भी आप बच्चे को खिलाते हो, दे वोंट ट्रबल यू विद दैट। सिक्योरिटी में बच्चों से रिलेटेड चीजों के लिए दे आर वेरी लीनियंट। देन कैरी टीदर और टॉय, अगर बच्चे के दांत आ रहे हैं या फिर एनीवेज जस्ट टू कीप देम बिजी, कैरी 1 or 2 टॉय। Then carry pacifier. Pacifier is very important. Why I'm saying this? Because मैंने भी traveling के time में I understood this fact कि जब flight take off करती है तो एयर प्रेशर की वजह से बच्चे के कान में पेन होता है, तो अगर वो मुंह चला रहे हो या कुछ सक कर रहे हो तो वो पेन कम होता है। सो इफ यू कैरी, अगर बच्चे को आदत है pacifier लेने का, देन उस पर्टिकुलर टाइम में यू शुड गिव pacifier। देन ऑब्वियसली ब्लैंकेट, पतला सा एक ब्लैंकेट, वैसे विद बेसिनेट दिल गिव यू द ब्लैंकेट एंड बेडशीट फॉर बेबी, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा हाइजीन कॉन्शियस है तो आप एक छोटा सा खुद भी कैरी कर सकते हैं। कैरी एक्स्ट्रा क्लॉथ्स, बिकॉज बच्चे ने अगर पॉटी कर दी और थोड़ा इधर उधर हो गया तो यू नो 1-2 एक्स्ट्रा कपड़े रखने चाहिए, आई वुड सजेस्ट। देन या बिब्स एंड बर्ब क्लॉथ ऑफ कोर्स, एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल बैग, हाँ कैरी सम प्लास्टिक बैग्स और डिस्पोजेबल बैग्स फॉर यू नो एक जगह कलेक्ट करके सारे स्टफ एंड देन यू कैन थ्रो, और फॉर डायपर्स हो, ताकि आपको बार बार उठ के जाना ना पड़े, बिकॉज इफ यू आर अलोन ट्रैवलिंग अलोन विथ योर बेबी तो आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते हो, और बार बार लेके जाना विल बी डिफिकल्ट। एंड देन एंड कैरी सम मेडिसिन्स, जो आपने नोटिस किया होगा आपके बच्चे को रेगुलर जरूरत पड़ती है, लाइक सम गैस ड्रॉप्स और ग्राइप वाटर में भी, वो आप कैरी कर सकते हो, 1-2 मेडिसिन जो इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑल। हाँ, एंड लास्ट, अगर आपका बच्चा थोड़ा भी राइम्स या यू नो टीवी में इंटरेस्टेड है तो अपने साथ एक आईपैड या टैब कैरी करिए एंड डाउनलोड वॉट एवर राइम्स यू नो जो उनके फेवरेट है, थोड़ा पहले से डाउनलोड कर लिए कि उस टाइम पे बच्चा अगर बीच में फंसी हो रहा है तो आप उसको सब दिखा के बिजी रख सके। आई थिंक दीज आर बेसिक थिंग्स एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट आई एम जस्ट सेइंग। एंड सम स्मॉल टिप्स बिफोर एंडिंग दिस वीडियो। अब बच्चे को बहुत ज्यादा हैवी क्लोथिंग या फिर यू नो बहुत अनकंफर्टेबल क्लोथ्स मत पहनाए, नए कपड़े अवॉइड करें। मेक श्योर वो जो पहन चुके हैं वो कपड़े सॉफ्ट हो जाते हैं वॉश करने के बाद, वो पहनाए जो कंफर्टेबल है, जो इजी डायपर वाइपर चेंज करने में हेल्प हो। वेदर के हिसाब से चूज द क्लोथ्स। So yeah, that's it. This was what I experienced in my journey with my baby.
होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई थिंक ये मामा लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज मुझे बहुत हेल्प मिली थी इस टाइप की वीडियो से. एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू. बाय बाय.